चलो जो let's we start with our new topic in that chapter number 9. In chapter number 9 we have studied up to the lipids. In last lecture we have discussed the lipids, simple lipids which are made up of the fatty acid and some are glycerol. Glycerol only trihydroxypropane. Not only that, but those glycerol and fatty acid react. Both are lipids, so react after reaction. That product is also lipid. If one fatty acid it is a monoglyceride, two fatty acid with glycerol diglyceride. If all the three fatty acid is it is a triglyceride. Beside that, if it is triglyceride having the phosphate, it is a phospholipid. The example of it in our book it is a lecithin, which is present in plasma membrane. Then after we had discussed the cholesterol, hexagonal, pentagon. Once again hexagon, but incomplete. Last one incomplete, and it goes like this one. फिर वो ऐसा 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 वो जो भी था वो देख लेना, पूरा भी रिपीट नहीं करता. Now look on the page number 144. We move to next. That is the living organism have number of carbon compounds in which heterocyclic rings can be found. Which carbon compound? These all are carbon compound definitely. Carbon compound. But which type of carbon compound we are now going to study? Heterocyclic ring. वो कैसा होता है वही तो स्टडी करने का है, नहीं तो सब सर ये क्या है. अरे देखो, in which heterocyclic rings can be found. Some of these nitrogen bases. बोलो ये जो heterocyclic कार्बन कंपाउंड these are what the numbers of type. एमिनो एसिड भी होता है, सब होता है. Here we are understanding nitrogen bases. Look, in our book they have given only two nitrogen bases, means all the name adenine, guanine, cytosine, thymine, uracil. But here we will classify it and we will understand in detail. These nitrogen bases are classified in two groups, purine and pyrimidine. Purine and pyrimidine. Look, what are the purines? Purines are those having the 5 carbon. Pyrimidines are made up of the 4 carbon. Pyrimidines are made up of the 4 nitrogen. Pyrimidines are made up of 2 nitrogen. देखो 5 4 देन ये 4 यहाँ पे आता है तो 4 का आधा होके यहाँ पे चला जाता है. नाउ प्यूरिन्स आर मेड अप ऑफ 2 रिंग्स. ये 2 यहाँ है तो उसका हाफ इधर. Pyrimidines are made up of 1 rings. This difference is not given in our book, but we should aware of this. Not only this, but we will discuss in very much detail. Because these whole things are asked in your Gujket and NEET. So we do not have choice to left. So look here, the example of purine are the adenine. Adenine. This adenine is indicated by a symbol this, which is for purine and A inside, A for adenine. This adenine is present in DNA and RNA both. Second one is guanine. This guanine is also given the purine symbol and G inside. This is also present DNA as well as in the RNA. For pyrimidine, cytosine, it is given symbol like this. This is the symbol for the pyrimidine and cytosine spelling C, so first alphabet C. This is present in only DNA. No, sorry, ये क्या हो गया? It is present in DNA and RNA. Second one, thiamine. This thiamine symbol is like N, alphabet T. This is present in only DNA, absent in RNA. देखो adenine, guanine,
ये डीएनए आरएनए में थे, साइटोसिन भी डीएनए आरएनए में था, बट हियर थायमिन इज ओनली इन डीएनए, इट इज एब्सेंट इन आरएनए. नेक्स्ट वन इज द uracil. This uracil pyrimidine, so symbol of the pyrimidine and U. This is in only RNA, absent in DNA. समझ में आता है? Look, in our book they have given only this: adenine, guanine, cytosine, thymine, uracil. Only name. Not this complete detail is given. But look, हमने ये पूरा करा. As well as तुमको समझ में आना चाहिए. This heterocyclic rings compound nitrogen bases, these all are present in DNA and RNA. Means indirectly we are studying the part of the DNA and RNA. So when we discuss the DNA RNA in this chapters last portion as well as in the standard 12 chapter number 6 and 7, this is very important. अब उस 12th में तो वो लोग ऐसा समझते कि ये सब तुमने 11th में फुल डिटेल स्ट्रक्चर समझ लिया है, बट वो उनको ही बुक लिखने वालों को याद नहीं कि उन्होंने जो दिया 11th में तो ओनली एडेनिन नाम नेम दे के नहीं चले गए, बट हमको जानना चाहिए. सो लुक हियर, ये जो मैंने रब कर दिया, बट यू पहले पॉज करो उसको और पूरा लिखो. लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा. सो लुक हियर, पॉज करने का वो पूरा कंप्लीट होता है, वहां पे पॉज करके पूरा लिख लेने का. Living organisms have a number of the carbon compounds in which heterocyclic rings can be found. Some of these nitrogen bases: adenine, guanine, cytosine, uracil, and thymine. We found attached when find attached to a sugar, they are called nucleoside. तो अब हमको इसको समझने के लिए साथ में यहाँ पे एडिशनल थोड़ा समझना है, ये नहीं, एडिशनल sugar. Which sugars are present here? So here the sugar with the 5 carbon sugars are here, so it is known as a pentose sugar. They are known as a pentose sugar. This pentose sugar here, look, this pentose sugar, ये 5 कार्बन पेंटोस शुगर हुआ, उसमें से हम देखते हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O5. क्या है? C5H10O5. This C5H10O5 means 5 carbon, 10 hydrogen, oxygen 5. This commonly known as the ribose, and they are present in RNA. They are part of RNA, means they are in RNA. राइबोस का R है, उस पे से तो RNA का स्पेलिंग में राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोस शुगर कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड. ओके, अब देखो यहाँ पे this is like this way, 5 carbon. This point is first carbon, this point is second carbon, this point is third carbon, this point is fourth carbon, this end point is fifth carbon. As well as you can make out here, first carbon and fourth carbon, they are both united by the oxygen. समझ में आया? अब देखो ये यहाँ पे ये सबके साथ में क्या हैगा, अब ये पॉइंट में निकाल देता हूँ. लुक हियर, यस, एंड अदर थिंग, देखो मेनी स्टूडेंट ऐसा कर देते, दिस इज रॉन्ग. वो ऐसा क्रॉस में ही आना चाहिए. सो लुक हियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. लुक, दिस फर्स्ट कार्बन OH, ये सेकंड कार्बन पे यहाँ OH, थर्ड में भी OH, फोर्थ में H रहेगा. उसका OH का क्या हुआ बाद में हम देखेंगे. और यहाँ पे फिफ्थ को C लिखने का एंड H2OH. दिस इज राइबोस शुगर. Every time it is very difficult to write this, draw this, so simple method. ये ऐसा ड्रॉ करने का, यहाँ ऑक्सीजन भी समझ जाने का हैगा, ऐसा ड्रॉ करने का, OH ऐसा आपने कर देने का, और यहाँ अंदर लिख देने का R. हाँ, ये थोड़ा ऊपर ले जाने का, बिकॉज दिस इज अ फ्री
फ्री मीन्स फिफ्थ कार्बन फ्री CH2H। समझ में आया? अब देखो ऐसा ही एक दूसरा रहेगा, अभी उसका मैं यहाँ डायरेक्ट इस पे से ही ड्रॉ करता हूं, तुमको समझ में आना चाहिए। लो, ये अभी हमने किया था वो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन दिस OH, सेकंड कार्बन OH, third carbon OH, fourth carbon H and fifth carbon CH2OH. Okay, so here look what happened. तुम बोलोगे सर it is a ribose, but no, here what happened, from this second carbon one oxygen is lost, that is removed. How it removes, what, that वो सब फ्यूचर में जब वो टॉपिक आएंगे तब। बोलो यहाँ पे वो H नहीं है तो बोलो क्या बनेगा, C5H10, C5H10, what is removed, oxygen, so O4. And here it is known as a one less carbon from the second, sorry, one less oxygen from the second carbon, so 2, second 2, these two indicate second number carbon. क्या हुआ, deoxy, deoxy means D means remove, oxy oxygen, ribose, वो राइबोस था, ये बना डिऑक्सी राइबोस, दोनों ऐसे सेम है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। एंड दिस इज प्रेजेंट इन DNA. Look here also deoxyribose, this, so that's why that name is the deoxyribonucleic acid. Here also it is indicated very easily by symbolically this यहाँ पे और अंदर D लिख देने का। समझ में आया? तो देखो ये था, और अभी हमने देखा प्यूरिन पिरिमिडिन मिस नाइट्रोजन बेसिस। अब ये दोनों जॉइंट होके जो बनेगा वो देखना हैगा। सो लुक हियर once again from that last paragraph on page number 144. What is it? Living organism has a number of carbon compounds in which heterocyclic risk can be found. Some of these nitrogen bases adenine, guanine, cytosine, uracil, thymine. When found added to a sugar, this either to the ribose sugar or to the deoxyribose sugar, it is called, they are called nucleosides. क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स। तो पहले हम इसको ये लेंगे, देखते हैं क्या होता है। बोलो, दिस हेट्रोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड मीन्स nitrogen bases, nitrogen base when joined with this sugar, so they turn into the compound known as the nucleoside. क्या बना वो, न्यूक्लियोसाइड। अब ये शुगर को भी यहाँ निकाल देता हूँ, तुम्हारे को ये शुगर भी लिख लेने की, पोस्ट करने का, लिखने का, पूरा कंप्लीट उसमें जो भी कराता हूँ सब नोट करने का। नाइट्रोजन बेस एंड शुगर न्यूक्लियोसाइड हुआ। देखो ये जो न्यूक्लियोसाइड हुआ, तो ये हम देखते कि ये न्यूक्लियोसाइड कैसे बना, बरोबर है। चलो देखो बरोबर ध्यान से देना। नाइट्रोजन बेस अभी खाली मैं सिंबल के लिए ड्रॉ करूंगा। शुगर वी नो दैट, लुक दिस इज द शुगर, राइबोस, राइबोस है तो मैंने R ड्रॉ कर दिया, अंदर हो गया। चलो दिस इज द फिफ्थ कार्बन, वो सब है, वो सब हम समझ गए। ये फर्स्ट कार्बन पे एडेनिन नाइट्रोजन बेस जॉइंट हुआ। प्यूरिन का कौन सा टाइप, एडेनिन, सो दिस इज नोन एज एडिनोसाइन। एडेनिन शुगर के साथ अटैच हुआ, एडिनोसाइन मीन्स ये न्यूक्लियोसाइड है। चलो पहले हम सिंपल इसमें, दिस इज न्यूक्लियोसाइड बिकॉज नाइट्रोजन बेस शुगर। ओके, हियर लुक हियर, व्हाट, दिस शुगर, बोलो ये शुगर है, बोलो इसके साथ में क्या हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन ही अब लिखता हूं, ग्वानिन, नाइट्रोजन बेस शुगर न्यूक्लियोसाइड, R वाला है, D वाला भी हो सकता है। चलो बोलो, दिस इज द नाइट्रोजन बेस। चलो ये नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस के अंदर बोलो क्या हुआ, यहाँ पे साइटोसिन, नाइट्रोजन बेस के साथ ये शुगर के साथ आया, ये
सुपर नाइट्रोजन बेस और ये शुगर था, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ओके, चलो, look, this is the sugar. Here on the first carbon, pyrimidine uracil. कोई भी है बट है तो नाइट्रोजन बेस, किसके साथ? शुगर के साथ। दिस इज न्यूक्लियोसाइड आर। बोलो, ये पेंटोस शुगर, इसके साथ में नाइट्रोजन बेस थायमिन। सो यहाँ पे डी लिखूंगा। वाई? थायमिन इज प्रेजेंट इन ओनली डीएनए डीऑक्सीराइबोस शुगर। यूरेसिल के साथ मैं आर ही लिखूंगा बिकॉज यूरेसिल इज प्रेजेंट इन ओनली राइबोस आरएनए, मींस आर ही आएगा। बट व्हेन वी कंसीडर दिस एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, तो अगर जो यहाँ पे मैं इसके साथ में डी लिख दूंगा तो भी चलेगा। क्यों चलेगा? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन डीएनए आरएनए बोथ। एंड इफ आई राइट हियर आर, तो भी चलेगा। मैंने आर के साथ ही सब एक्सप्लेन किया है। सो लुक हियर व्हाट हैपन। Now you can understand these both are unite to form nucleoside. This one is also nucleoside. This one, this one, this one, this one. All are the nucleosides. So how to distinguish between them? To distinguish, अलग करने के लिए, they are given nucleoside. Every nucleoside is given proper name. This is called as adenosine. Means it is a nucleoside with the adenine. This is known as guanosine. Means nucleoside where nitrogen base is guanine. This is known as cytidine. Means nucleoside with cytosine. This is known as uridine. Means nucleoside with uracil. This is known as thymidine. Means nucleoside with thymine. हो गया इतना? चलो बोलो, अब क्या होता है? बी केयरफुल। दिस न्यूक्लियोसाइड, बोलो न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया? ये यहां पे लिखता हूं, न्यूक्लियोसाइड। व्हेन इन दिस न्यूक्लियोसाइड दिस sugar attached to phosphate, sugar attached to phosphate group, phosphate, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड की शुगर में कौन आया? फोस्फेट। वो प्लस कर दिया तो एटेड टू लिखने का नहीं, शुगर पे कौन आया? फोस्फेट ग्रुप। सो इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। बोलो, ये न्यूक्लियोसाइड था, उसके शुगर पे ये फोस्फेट आया, तो अभी तक इतना था वो न्यूक्लियोसाइड था। ये दोनों के ज्वाइंट होने से ये न्यूक्लियोसाइड, उसमें ये फोस्फेट अटैच हुआ शुगर पे, तो वो बन गया न्यूक्लियोटाइड। सेम वे ये न्यूक्लियोसाइड है बिकॉज नाइट्रोजन बेस एंड शुगर, तो न्यूक्लियोसाइड है। ये पूरा न्यूक्लियोसाइड है, उस पे बोलो ऑन दिस sugar it is attached with the phosphate, so it turns into nucleotide. This one is also nucleoside. As we have studied nitrogen based sugar, it is a nucleoside, but when it is phosphate attached to here, it turns into nucleotide. Here also this is the nucleoside, but here in this phosphate with sugar, it is nucleotide. Here also this one is the nucleoside because nitrogen base and sugar it turns into nucleoside. अब उसके sugar पे phosphate आ गया, so it turns into nucleotide. तो बोलो, न्यूक्लियोसाइड में से न्यूक्लियोटाइड बना तो उसका नेम भी चेंज हो जाएंगे। तो ये इतना न्यूक्लियोसाइड था एडिनोसाइन, इट टर्न्स इनटू एडिनाइलिक एसिड। इतना था, उसका नाम क्या था? न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसाइन। बट फॉस्फेट आके न्यूक्लियोटाइड बना तो एडिनिलिक एसिड। बोलो, ये था, इतना फॉस्फेट नहीं अटैच था तो न्यूक्लियोसाइड ग्वानोसाइन था, उसमें फॉस्फेट आ गया, सो इट इज अ ग्वानिलिक एसिड। बोलो, इतना इसमें फॉस्फेट नहीं था तो ये न्यूक्लियोसाइड था। बोलो, न्यूक्लियोसाइड साइटिडीन था तो फॉस्फेट आया तो वो न्यूक्लियोटाइड बना, साइटिडिलिक एसिड। ओके, बोलो, ये न्यूक्लियोसाइड था,
यूरिडीन, उसमें फॉस्फेट आया तो ये बना यूरिडिलिक एसिड। फॉस्फेट एन होने से सब एसिड एसिड हो जाते हैं। इतना न्यूक्लियोसाइड था, उसमें फॉस्फेट आया तो न्यूक्लियोटाइड थाइमिडिनिक एसिड। समझ में आया? तो बोलो न्यूक्लियोसाइड में से क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। यानी ये अभी मैंने ये सब ड्रॉ करा है वो न्यूक्लियोटाइड हो गया। पहले फॉस्फेट नहीं था तो वो क्या था? न्यूक्लियोसाइड। सो लुक हियर, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। पहले से लेते चलो। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज number of the carbon compounds in which heterocyclic rings can be found. Some of these are the nitrogen bases adenine, guanine, cytosine, uracil, thymine. We found this attached to the sugar, they are called nucleoside. बोलो sugar के साथ ही खाली attached था तो हमने बोला था nucleoside. If a phosphate group is also found esterified, means ester bond हो गया, esterified. Lipid में भी esterified हुआ था. The sugar they are called nucleotides. बोलो ester bond से esterified हुआ तो इसको अब बोलेंगे nucleotide. Highlight करो esterified, ester bond. एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन और न्यूक्लियोसाइड। बोलो सबके ऊपर यहाँ यूरिडीन या थाइमिडीन, साइटिडीन, ग्वानोसाइन, एडिनोसाइन था तो वो क्या था? न्यूक्लियोसाइड। बट फॉस्फेट हुआ तो उसके अंदर एसिड एसिड ऐड हुआ। एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडिनिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड आर द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। बोलो वो क्या कंसिस्ट करते हैं? खाली न्यूक्लियोटाइड। वो हम जब आएगा जब देखेंगे एक ने न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ डिटेच हुआ, दूसरा तीसरे के बाद, दैट ऑल सीक्वेंस ऑफ द पॉलीमर फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म, इट विल टर्न्स इनटू द डीएनए और आरएनए। राइबोस वाला होगा तो आरएनए, डीऑक्सीराइबोस वाला होगा तो डीएनए। डीएनए आरएनए फंक्शन इज जेनेटिक मटेरियल। अब देखो इधर in detail in our book only two nitrogen bases are given, only two, adenine and uracil. ये देखो पेज नंबर 145, एडेनिन एंड यूरेसिल, ये दो ही दिए। यहाँ पे दो शुगर दी, वो शुगर तो हमने की थी। ये दोनों हम समझते हैं, नॉट ओनली दिस टू बट वी विल अंडरस्टैंड ऑल द फाइव because it is asked in the Gujket and NEET, because these complete detailed chapters are given in standard 12 chapter number 5, 6, 7। हालत बिगड़ जाती है, ये नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। So look here, we will start with the purine. As we know that purines are the made up of the 5 carbon, 4 nitrogen, 2 rings, adenine and guanine. Be careful, try to understand. चलो बोलो कैसे? C double bond C, always start with C double bond C. अब देखो ये जो C डबल बॉन्ड C लिखा है उसके ऊपर यहाँ पे ऐसा क्रॉस में C और इसके सामने यहाँ पर N। स्टूडेंट क्या करते हैं? ऐसा ऐसा करते हैं, C फिर ऐसा N, उसमें अच्छा नहीं बनता है, भूल हो जाती है। सो लुक हियर वंस अगेन, C डबल बॉन्ड C, बोलो इसके ऊपर यहाँ से C, यहाँ पर N, इसके नीचे C, यहाँ इसके नीचे N, C N C N, C N C N, and you join this. इसके ये साइड पे, राइट हैंड साइड पे, यहाँ से C से स्टार्ट करा था, यहाँ से N से, बट बी केयरफुल, N फिर ये दोनों C के बॉन्ड का है वहां पे C, N C और इसके सामने यहाँ पे N, not NCNC, only NCN, here CNCN, here NCN. Right now, once again, C double bond C, C
क्रॉस क्यों जाता है? C डबल बॉन्ड C, CN, CN। बोलो यहां पे क्या? NCN। Okay. Now look here before it. Let's we count the carbon. First means 1, 2, 3, 4, 5. Nitrogen 1, 2, 3, 4. Rings. This is the one ring, this is the second ring. They are purine. Here look, this C11C is common. So here in this ring only 3 members are there, NCN. And here 4 members, CNCN. Definitely this is the large ring and this is the small ring. तो देखो ये स्मॉल रिंग है ना, वहां से करने का क्या? डबल बॉन्ड, लार्ज रिंग में डबल बॉन्ड। स्मॉल से स्मॉल के अंदर नहीं, स्मॉल टू लार्ज, अप टू डाउन, डबल बॉन्ड एज वेल एज ये जो स्मॉल रिंग का यहाँ एच है, इसके साथ में दोनों के साथ में एच एच डबल बॉन्ड, स्मॉल टू लार्ज, अप टू डाउन, डबल बॉन्ड। और स्मॉल में यहाँ पे एच एन एच, इतना तो एडेनिन होगा तो भी, ग्वानिन होगा तो भी, सब में आने वाला ही है। बोलो समझ में आया ना? बोलो ये स्मॉल रिंग, डबल बॉन्ड, अप टू लार्ज, डबल बॉन्ड। एंड हियर दिस इज एच। चलो फर्स्ट वी प्रिपेयर एडिनाइन। लुक हियर, इतना तो हो गया। अब इसमें कुछ नहीं, ये लार्ज में याद रखने का। यहां से NH2, फिर डबल बॉन्ड NH, NH2 डबल बॉन्ड H, इतना हो गया था। ये लार्ज में याद रखने का क्या? NH2 डबल बॉन्ड H। चलो फिर से वन टाइम रिपीट कर देंगे। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CN NCN। वह इतना। बोलो क्या आएगा इसमें? बोलो कहां से कहां? स्मॉल टू लार्ज, अप टू डाउन। ओके, देन आफ्टर व्हाट? ये स्मॉल में एच, ये तो आना ही है एडेनिन ग्वानिन दोनों में। यहां का याद रखना है NH2 डबल बॉन्ड H, मीन्स ये क्या हुआ? एडेनिन। चलो हम ग्वानिन अब करेंगे। इतना है, मैंने पहले सोचा था उसमें ही चेंज करके बता दूं, बट नॉट, गो फॉर इट। बोलो ग्वानिन, C डबल बॉन्ड CN। बोलो अभी आपने बोला था ऐसा। इधर बोलो क्या? NCN। हो गया? बोलो स्मॉल टू लार्ज, ये स्मॉल रिंग टू लार्ज रिंग, डबल बॉन्ड। स्मॉल में ही दिस H। बोलो एडेनिन में क्या करा था? NH2 डबल बॉन्ड H, ऊपर से नीचे आए थे। ग्वानिन में नीचे से आने का NH2। देखो सीक्वेंस ऐसी जा रही है, मीन्स कितने स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं NH2, नॉट दैट लाइक, ऐसा यूं ऐसा लिखते जा रहे। तो NH2, दिस H एंड डबल बॉन्ड O। उसमें क्या था? NH2 डबल बॉन्ड H, इसमें NH2H डबल बॉन्ड O। वंस अगेन लुक, C डबल बॉन्ड CNCN, NCN, लार्ज टू स्मॉल टू लार्ज, स्मॉल में H एंड H। बोलो एडेनिन था तो क्या करा था? NH2 डबल बॉन्ड H, ग्वानिन NH2H डबल बॉन्ड O। हो गया इतना। फिर से एक बार इधर एडेनिन ग्वानिन रिपीट करते हैं।
बरोबर समझना। बोलो सी डबल बॉन्ड सी, सी एन सी एन, एन सी एन, यही नीचे ड्रॉ करता हूं। बी केयरफुल, रिपीट करता हूं, मीन देयर शुड बी समथिंग स्पेशल। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, लोग सी आर डिनोटेड बाय ओनली डॉट, सी एन सी एन, means we will not write C. C are denoted by only dot, और इसको ज्वाइन कर देने का। समझ में आया? बोलो ये साइड पे क्या था? एन सी एन, एन सी एन, बोलो स्मॉल टू लार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, चलो यहाँ पे सी डोंट के साथ में एच, एच अदर देन एच जो भी होगा वी विल ड्रॉ हियर, बट इफ इट इज एच वी विल नॉट ड्रॉ इट। सो यहाँ एच एंड एच बोला था ना, एच एंड एच, इसमें हाँ डबल बॉन्ड रह गया था, सॉरी। एच एच, सो हियर एच, दिस एच। चलो एडेनिन बनाना है, तो क्या है एडेनिन में क्या था? NH2 डबल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड H, तो बोलो यहाँ पे क्या? NH2 डबल बॉन्ड H, नहीं, C के साथ C नहीं बताया तो H नहीं बताया, दूसरा जो कुछ भी होता तो हम बता देते, एनीथिंग। चलो बोलो ग्वानिन, C डबल बॉन्ड C, CNCN, NCN। ओके, तो बोलो यहाँ पे क्या? C डबल बॉन्ड C, CN CN CN। चलो ये साइड पे क्या आएगा? NCN। समझ में आ रहा है ना? बोलो स्मॉल टू लार्ज डबल बॉन्ड अप टू डाउन, इसमें क्या है? HNH, ये H नहीं, क्यों नहीं? C डिनोटेड बाय डॉट ओनली, H, ये H है। चलो अभी हमने एडेन देखा था तो क्या था? NH2 डबल बॉन्ड H, बट ग्वानिन में नीचे से स्टार्ट करना है, क्या? NH2 H डबल बॉन्ड O, सो हियर ऑल्सो, यहाँ से बोलो क्या? NH2। एक स्टूडेंट ने बोला सर आपने तो यहाँ नहीं लिखा था, वो H था। इफ C is donated, carbon is denoted by the dot, then we will not show H, but other than H जो भी होगा तो लिखना ही पड़ेगा। तो NH2 H डबल बॉन्ड O, H होता तो नहीं लिखते, डबल बॉन्ड हो तो। दिस इज ग्वानिन, सब आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। वीडियो पोस्ट करने की, लिखने का, पोस्ट करने की, लिखने का, तो ही आएगा। चलो लेट्स वी गो फॉर पिरिमिडिन। pyrimidine, this pyrimidine 4 carbon, 2 nitrogen and 1 ring. Okay, look here once again, C double bond C, C N C N over, why? 1 ring, ये साइड का NCN नहीं करने का। Look, carbon, count carbon, 1 2 3 4, 4 carbon, count nitrogen, 1 and 2, 2 nitrogen and 1 ring. Beside this, ये जो डबल बॉन्ड है here, वो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के बीच में लिटी कर दूंगा, इफ आई ड्रॉ दिस टर्न्स इनटू H, तो वो याद रखने का, बट हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम, उसके नीचे से, यहाँ से, ये डबल बॉन्ड से करता हूँ तो यहाँ से
टू टाइम, वन मीन्स एच एच ऐसा, एंड डबल बॉन्ड ओ। मैंने क्या याद रखा था, H2O मीन्स टू टाइम H एंड O। इतना तो साइटोसिन में भी आएगा, थायमिन में आएगा, पिरिमिडिन में भी आएगा। लेट्स वी वंस अगेन रिपीट, C डबल बॉन्ड C, CN। प्यूरिन होता तो NCN करते, यहाँ पे पिरिमिडिन में नहीं करने का। एज वेल एज हियर, बोलो क्या, ये H पे से याद रखना है, यहाँ पे H हम कन्वर्ट कर सकते हैं सर, यहाँ पे H टू टाइम H2 एंड O। बोलो पहले हम बनाएंगे साइटोसिन। इन साइटोसिन व्हाट हैपन, लोग एडेनिन पे से याद रहने का, व्हाट वाज द एडेनिन, NH2 डबल बॉन्ड H, वैसा ही बोलो क्या, साइटोसिन NH2 डबल बॉन्ड H, बट द पोजीशन ऑफ O इज H इज ऑक्यूपाइड बाय O। तो उसके ऑपोजिट देखो यहाँ पे स्पेस खाली है, तो H। बोलो कैसा, प्यूरिन एडेनिन था वो, NH2 डबल बॉन्ड करके H, तो सेम NH2 डबल बॉन्ड, बट वो स्पेस फिल हो गई, तो ये यहाँ पे उसके ऑपोजिट, दिस इज कॉल्ड साइटोसिन। वंस अगेन, C डबल बॉन्ड C, CN। ओके, देन हियर H2O बोला था ऐसा। चलो बोलो क्या करने का, NH2 डबल बॉन्ड H। समझ में आता है, लुक हियर, हाउ वी विल ड्रॉ दिस साइटोसिन, C डबल बॉन्ड C, CN। अभी हमने एडेनिन ग्वानिन ड्रॉ किया था ऐसा ही, अब तो समझ में आ गया होगा। ओके, बोलो यहाँ पे क्या था, H डबल बॉन्ड O, यहाँ का H नहीं बताने का, ये H, दिस डबल बॉन्ड O हो गया। अब क्या, यहाँ से बोला था क्या, NH2 डबल बॉन्ड H, यहाँ का नहीं होता तो साम है, सो NH2 डबल बॉन्ड H, यहाँ का C डॉट है तो H भी नहीं, हाँ दूसरा कुछ होता तो हम बता देते। फिर से लेट्स वी रिपीट कंप्लीट, C डबल बॉन्ड C, CN। तो बोलो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, CN हुआ इतना। बोलो अब क्या आएगा, बोलो जल्दी से, ये ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, कर दिया ज्वाइन। अब बोलो जल्दी से, बोलो क्या आएगा, बोलो यहाँ से सा क्या था, ये ऐसा आप कर दो, H बनता है तो यहाँ से टू टाइम H एंड डबल बॉन्ड O, उसके लिए मैंने H2O किया था। सो लुक हियर, H इसके साथ नहीं आएगा, यहाँ H डबल बॉन्ड O। चलो साइटोसिन है तो क्या आएगा यहाँ पे, बोलो क्या है, NH2 डबल बॉन्ड H, तो बोलो यहाँ पे NH2 डबल बॉन्ड, ये H की जगह गई तो सामने H, वो भी नहीं बताएंगे। So look, this was the cytosine. Let's we go for thymine. C double bond C, CN। हुआ इतना, बोलो यहाँ से बोला था क्या, टू टाइम H डबल बॉन्ड O, हुआ इतना। बोलो क्या हुआ है सर, अब हम बताते हैं थायमिन। थायमिन में क्या है, तो यहाँ से स्टार्ट करके ऐसा चले आने का, बी केयरफुल, CH3 डबल बॉन्ड ONH, CH3OH। फिर से देखो C डबल बॉन्ड C, ये तो रिपीट हो के तुमको याद हो गया होगा, यहाँ से H डबल बॉन्ड O। बोलो साइटोसिन था तो क्या था, NH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर H। ये थायमिन है, थायमिन में यहाँ से स्टार्ट करने का क्या, CH3 डबल बॉन्ड ONH। फिर से वंस C डबल बॉन्ड C, CN, H डबल बॉन्ड O।
साइटोसिन में NH2 डबल बॉन्ड H, तो H यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करने का, CH3 डबल बॉन्ड OH, हुआ इतना। चलो एक दो बार, 1 2 टाइम, वंस अगेन वी रिपीट दिस। लुक, C डबल बॉन्ड C, CN CN, तो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, C डबल बॉन्ड C, CN CN एंड ज्वाइन दिस ऑल, हुआ इतना। बोलो फिर क्या था यहाँ से, H डबल बॉन्ड O, H2O, सो हियर H ना, यहाँ का H, हाँ यहाँ डबल बॉन्ड O आएगा। लुक, व्हेन कार्बन इज इंडिकेटेड बाय द डॉट, व्हाट विल बी हैपन, H इज नॉट ड्रॉन, वो समझ जाने का होता है। चलो साइटोसिन था तो क्या था, NH2 डबल बॉन्ड NH, तो बोलो यहाँ पे आता है NH2 डबल बॉन्ड NH। बट हमको थाइमिन बनाना है, बोलो थाइमिन बनाना है तो कैसा, यहाँ से स्टार्ट करने का, CH3 डबल बॉन्ड OH, तो बोलो यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड ONH आ गया। लेट्स गो फॉर द यूरेसिल, C डबल बॉन्ड C, CN CN, बोलो क्या था, H डबल बॉन्ड O, हुआ इतना। बोलो अब यूरेसिल में बहुत टेंशन नहीं, ये दोनों को H ने ऊपर डबल बॉन्ड O, बोलो फिर से C डबल बॉन्ड C, CN CN, ये तो इतना तो फिक्स ही रहने वाला है इसमें। बोलो यूरेसिल में क्या करने का, ये H दोनों ने ऊपर डबल बॉन्ड O, समझ में आता है। सो लुक हियर, C डबल बॉन्ड C, CN CN, बोलो क्या हुआ अब अपने, बोलो जल्दी से, यस H डबल बॉन्ड O। चलो फर्स्ट कौन सा था, साइटोसिन, NH2 डबल बॉन्ड H, एडिनिन पे से यार थे, एडिनिन में NH2 डबल बॉन्ड H, वो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आता तो H आ जाता था, NH2, तो यहाँ साइटोसिन में NH2 डबल बॉन्ड H यहाँ आ गया तो उसका H यहाँ आ गया। चलो थाइमिन में यहाँ से यहाँ रखा था, CH3 डबल बॉन्ड O H, यूरेसिल तो H एंड डबल बॉन्ड O। चलो इसका भी वो स्ट्रक्चर हम रिवाइज करते हैं, बोलो क्या आएगा, C डबल बॉन्ड C, CN CN, बोलो क्या आएगा, C डबल बॉन्ड C, CN CN, बोलो यहाँ पे क्या था, H डबल बॉन्ड O, H2O, तो लो यहाँ पे भी क्या, H नहीं बताने का, H डबल बॉन्ड O, हो गया। बोलो क्या यूरेसिल में, H डबल बॉन्ड O, H नहीं बताने का, डबल बॉन्ड O। बोलो इतना तो कॉमन सब में रहता है। लास्ट टाइम साइटोसिन में क्या था, NH2 डबल बॉन्ड, ये प्लेस भरा हुआ है, सॉरी ये नहीं था, NH2 डबल बॉन्ड, ये प्लेस भरा तो यहाँ H, तो बोलो साइटोसिन NH2 डबल बॉन्ड, ये प्लेस है तो यहाँ पे H। चलो थाइमिन में क्या था, CH3 डबल बॉन्ड O एंड H, CH3 डबल बॉन्ड O एंड H। यूरेसिल H डबल बॉन्ड O, H यहाँ का इतना ही ड्रॉ करेंगे, डबल बॉन्ड O, हो गया। So look, in our book they have given only two, which two, adenine and uracil, बट मैंने सब कराएंगे, तुमको पूरा डिटेल में आना चाहिए, डिटेल में पूरा आना चाहिए, ओके। सो लोग इससे आगे का नेक्स्ट टाइम करेंगे, ओके। ये पूरा लर्न करके आना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।